Good night. Good night. Okay, students. So Good afternoon, sir. let's start with Good morning. today's topic. Today we are going to start refraction of light through a prism. Basically, what is a prism? Prism is when two transparent, you can see over here, when two transparent sides are inclined to each other with a base, the instrument that form is known as prism. In prism, we have two refracting surface. Please see on the shear file, we have two refracting surface. One is AB and other one is AC. And the angle at which these two surfaces are inclined is known as angle of prism. When a ray of light enters from one side, it gets refracted as it moves from rarer to denser, then again denser to rarer. And we know when a light moves, enter from rarer to denser, it refracts away from the normal, then towards the normal. So this is the basic principle of prism. Let's start with this. First is, consider we have a prism ABC and a ray refracted enter from side AB, get refracted and emergent from the another side, say AC. The refractive index of the material with which prism is made is nu, normal to the incident ray and the refracted ray, N1 and N2. The angle at which light incident is known as angle of incidence, which is represented by I, and the ray with which after refraction ray emergent from the prism means जिस एंगल से ray of light refract होने के बाद multiple refraction के बाद प्रिज्म से बाहर निकल जाएगी, उस एंगल को हम नाम देंगे एंगल ऑफ इमर्जन और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे विद E. Don't get confused. I is
angle of incidence, E is angle of emergence. Means after multiple refraction, जिस एंगल से लाइट प्रिज्म को लीव करके बाहर निकलेगी, that is known as angle of emergence. Is that clear? Difference between incidence angle and emergence angle? Yes, sir. Yes, sir. Good. Next is when light enter from AB, angle of incidence, then we have a normal. The light get refracted, and the light at which angle it get refracted is represented by R1. So R1 is angle of refraction. Then light moves straight and again get refracted. Now over here it acts as a incident ray, but we will notify it with R2, angle of refraction, and then it leaves the prism with by making an angle E, that is angle of emergence. Now suppose अगर हमारे पास ए बी साइड ना होती और ये रे हमारे पास सीधी ट्रेवल करती, तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होनी थी, तो उस नॉन रिफ्रैक्टेड रे को हमने ड्रॉ किया विद द डॉटेड लाइन पी डी के साथ, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे ब्लू के साथ विजिबल है, और उसी एमर्जेंट रे को हमने रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोड्यूस करने के बाद उसने दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर दी। अब यहाँ पे एक टर्म आपको हम यूटिलाइज करेंगे, दैट टर्म इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए डेविएट करना, डेविएट मतलब अपने पाथ से हट जाना, जो आपका टारगेट है उस टारगेट से जब आप मूव कर जाते हो, डीरेल हो जाते हो, उसे हम बोलते हैं डेविएट करना। बाय द सिमिलर मैनर लाइट, अगर ये ए बी साइड हमारे पास ना होती तो लाइट ने मूव करना था स्ट्रेट, लेकिन ए बी साइड की वजह से लाइट क्या हो गई, अपने पाथ से डेविएट कर गई, अपने पाथ से वो हट गई। तो जिस एंगल से वो अपने पाथ से डेविएट की, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। So please write down the angle at which light get deviated from its original path is known as angle of deviation. So this is the original path, but it get refracted. So by delta angle or by angle D, this is known as angle of deviation. Here it is. So the point at which ray incident is P, where emergent ray and incident ray meet is D, and here is point O. Now let us find out the refraction through prism, basic derivation. Now in quadrilateral A P O Q, अब quadrilateral में अपने lower classes में पढ़ा हुआ है, in a quadrilateral the opposite sum of opposite angle is, or the sum of all angle is 360 degree. So we will have opposite angle A plus angle O, that is 180 degree. N1 and N2 both are normal. So in triangle OPQ, हाँ जी, grade 6 में या 7 में हम पढ़ते हैं, in a triangle sum of all angles is 180. So R1 plus angle O plus angle R2 is 180 degree. बच्चों क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सार्थक? यस सर, क्लियर हो रहा है। Similarly in triangle DPQ, सर एक डाउट था हाँ जी, सर, जो आप स्क्रीन शेयरिंग पे जो डायग्राम है प्रिज्म का, हाँ जी। उसमें ये जो लाइन ओ, कौन सी लाइन? सॉरी, ये जो O और N2 वाली लाइन है, हाँ, इज इट पैरेलल टू PD जो लाइन एक्सटेंड कर रही है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पैरेलल होगी, क्योंकि जो ON वाली लाइन है वो हमारे पास नॉर्मल है, दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है ना। नॉर्मल क्या होता है, अगर मैं एक यहाँ पे सरफेस ड्रॉ करूं, कोई भी एक, ये मेरे पास अगर सरफेस है, होप इट इज विजिबल टू यू, तो यहाँ पे एक
इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, और ये होगा हमारे पास नॉर्मल। तो N1 जो है वो हमारे पास नॉर्मल है, और सेकंड जो लाइन PD जो आप बोल रहे हो, वो लाइन क्या है हमारे पास कि एंगल ऑफ प्रिज्म या जो प्रिज्म है वो किस मटेरियल का बना है और वो कितने एंगल से लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा। तो ये आपस में पैरेलल कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। आप देखो P पॉइंट से वो निकल रही है जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और बेसिक प्रॉपर्टी क्या है पैरेलल लाइंस की कि टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। Yes, sir. हाँ, तो ये आपस में पैरेलल नहीं है। गॉट इट? अच्छा, बिकॉज ये वाला जो एंगल है एंगल E, हाँ, और उसके साइड में जो एंगल फाई है, डेल्टा। डेल्टा, हाँ, ये दोनों सेम नहीं होंगे? नहीं नहीं, सेम क्यों होंगे? ये कौन सा एक ही सरफेस पे बन रहे हैं? ना तो एक प्लेन में बन रहे हैं। जब आप Okay, इसे अच्छा, ड्रॉ मेरे को लगा करोगे तब था आपके same पास है। अपने आप ये क्लियर हो जाएगा। मैं आप एक बार फिर से डायग्राम दोबारा से दिखाता हूं आपको। हमारे पास ये मटेरियल है जिसका हमने प्रिज्म बनाया। एंगल ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ये लाइट इंसिडेंट की और रिफ्रैक्ट की। अब जब लाइट रिफ्रैक्ट की तो ट्रायंगल के अंदर, सॉरी प्रिज्म के अंदर देखो, वो लाइट स्ट्रेट नहीं जा रही, वो अपवर्ड जा रही। वहां से आपको क्लियर हो Yes, जाएगा कि ये सरफेसेस जो एंगल है ये आपस में इक्वल नहीं है। Now, in triangle DPQ, external angle is always equal to sum of internal angle. Sorry. अब देखिए, ये जो एंगल है, प्लीज जो मैं व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहा हूं उसे आप मैक्सिमाइज कीजिए। दिस होल एंगल इज I, दिस एंगल इज R1, तो ये जो मेरे पास एंगल बचेगा, दिस एंगल इज I माइनस R1। क्लियर हो गया? एंगल DPQ इज एंगल I माइनस R1, क्योंकि ये सारा एंगल मेरे पास I है, ये एंगल R1। इस पूरे एंगल में से इतना एंगल मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिमेनिंग एंगल मेरे पास क्या बचा? I माइनस R1। और सिमिलरली दूसरी साइड, दिस एंगल इज E, दिस एंगल इज R2, so this angle will be E minus R2. Now, external angle, that is angle of deviation, is equal to sum of internal angle. So this is I minus R1 plus E minus R2. जब इन दोनों इक्वेशंस को हम एड अप करेंगे तो हमारे पास एक्सटर्नल एंगल, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज, हमने इसे मॉडिफाई कर दिया, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, माइनस R1 प्लस R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करिए तो हमारे पास तीनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद आ गया एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और नीचे हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। अब देखो, एंगल ऑफ डेविएशन किस किस के ऊपर डिपेंड किया, यहां से सार्थक आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, अबर्जेंट पे और एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर। अगर डेल्टा और E में एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल हो जाते तो इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म सेम हो जाने थे, और अगर ये दोनों सेम हो जाते तो लाइट रिफ्रैक्ट ही नहीं करनी थी, क्योंकि लाइट तो फिर सेम एंगल से पास आउट कर जाती, क्रिटिकल एंगल से। तो Yes, sir. हाँ, तो वो पिछले वाले का आंसर आपको यहाँ पे मिल गया होगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E, that is angle of incidence plus angle of emergence minus angle of prism, or I plus E is equal to A plus delta. Please underline this equation. This is the most important. In exam, they usually ask to give a relation between angle of prism, angle of deviation and incident ray. So at that point, सबसे पहले रे डायग्राम बनाओ, उसको एक्सप्लेन करो रे डायग्राम को, देन मैथमेटिकल फॉर्म और यहां पर लाके छोड़ दो। तो I इज इक्वल टू
I plus E is equal to A plus delta, where A is angle of prism, delta is angle of deviation, I angle of incidence, and E is angle of emergence. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. next one is, ये आ गया आपके पास. So sum of angle of incidence and angle of emergence equal to sum of angle of prism and angle of deviation. Please इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे पार्ट करूँगा. You have 2 minutes only to note it down. वैसे मैं आपको इसकी पीपीटी और पीडीएफ भेजूंगा, लेकिन फिजिक्स तभी ज्यादा आएगी जब आप अपने हाथ से कुछ करके देखो. The more you practice, more will you gain. तो इसे नोट करिए जल्दी से. ज्यादा एम्फेसाइज आपने रे डायग्राम के ऊपर करना है. यूजुअली एग्जाम में अगर रे डायग्राम करेक्ट है तो टीचर, हम लोग एजुकेटर्स जो हैं वो कंटेंट पे नहीं जाते, बट फिर भी कंटेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से आना चाहिए. बट रे डायग्राम इज मस्ट. अगर आपने रे डायग्राम ड्रॉ नहीं किया तो एक्सप्रेशन कोई चेक नहीं करेगा. अगर रे डायग्राम में कोई गलती है तो भी एक्सप्रेशन कोई चेक नहीं करेगा. तो मोर एम्फेसाइज ऑन योर रे डायग्राम. जल्दी से नोट करिए इक्वेशंस को. One minute more. Okay. So further we have variation of angle of deviation with angle of incidence. अभी जो हमने रिलेशन ड्राइव किया उस रिलेशन में हमारे पास था I plus E is equal to A plus delta. Angle of incidence, angle of emergence is equal to sum of angle of prism plus angle of deviation. So next graph है कि ग्राफ हमारे साथ कैसे वेरी करेगा. One is incident, it is between incident ray and angle of deviation. So the graph would be like this. Please note it down. और इस बार एग्जाम में सिर्फ उन्होंने ग्राफ पूछा था कि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ये 1 मार्क जो क्वेश्चन है हमारे पास 20 एमसीक्यू वो डिवाइड रहते हैं 10 एमसीक्यू 5 फिलअप्स एंड 5 1 मार्क क्वेश्चन. तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में था हमारे पास कि ड्रॉ अ रे ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन. प्लीज नोट इट डाउन. So the next one is refractive index of a material. अब हमने refractive index फाइंड करना है कि जिस मटेरियल का हमने ये प्रिज्म बनाया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. अगर तो ये ग्लास का है तो आपको पता है इट इज 1.5. अगर बीच में ये होलो है तो देन इट इज एयर इनसाइड, तो ये रहेगा 1. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे. सपोज अभी हमने ड्राइव किया A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 लास्ट आर्टिकल में. तो अगर हम दोनों एंगल्स को सॉरी दोनों रिफ्रैक्टिव एंगल्स को इक्वल कर दें, इफ R1 इक्वल टू R2 तो हमारे पास A बन जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म इज 2R और R इज A by 2. We have a relation I plus E is equal to A plus delta. हमने रिप्लेस कर दिया. देखिए
R1 equal to R2, then A is equal to 2R and R is equal to A by 2. Second we have I plus E is equal to A plus delta. अब अगर रिफ्रैक्टिव में एंगल इक्वल होंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इक्वल होंगे. देखो I1 I is equal to R1, E is equal to R2. Angle of incidence is always equal to angle of refraction. तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम इक्वेट करेंगे then I is equal to E. I is equal to E. ये दोनों एंगल इक्वल है then it is 2I is equal to A plus that is delta minimum deviation. Then we have I is equal to A plus delta M by 2. Now Snell's law states that refractive index mu is equal to sin I upon sin R. ये हमने किया हुआ है. Mu is equal to sin I upon sin R. Sin I की वैल्यू हमने फाइंड की A प्लस डेल्टा M by 2 और R की वैल्यू हमारे पास थी sin A by 2. So refractive index mu is equal to sin A plus delta M by 2 upon sin A by 2. Students, clear beta? How to find refractive index? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sarthak, any doubt? Yes. No, sir. Chandan, No, sir. so the next one is refraction by small angle prism. अब अभी जो हमने प्रिज्म किया उसमें एंगल हमारे पास लार्ज था. बेसिकली जो हमारे पास एंगल ए की वैल्यू रहेगी वो हमेशा रहेगी 60 डिग्री. वैसे तीन तरह के प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म, आइसोसेलेस और दूसरा. तो राइट एंगल में आपको एंगल फाइंड करना पड़ेगा. राइट एंगल में 90, आइसोसेलेस में 60. तो एक थर्ड टाइप का प्रिज्म होता है जिसमें अलग अलग वेरिएशन दी होती है एंगल्स की. तो दिस वन इज रिफ्रैक्शन बाय अ स्मॉल एंगल प्रिज्म. अब हमारे पास जो प्रिज्म है उसका एंगल काफी ज्यादा स्मॉल है. इट इज ऑफ वेरी स्मॉल एंगल. तो फर्स्ट वी हैव mu is equal to sin I by sin R. You know it is by Snell's law. Then mu is equal to sin E by sin R2. अब देखो ये जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है किस तरह से, ये फर्स्ट सरफेस के लिए यहां से इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड है. अब उसी तरह से सेकंड सरफेस यहां से रिफ्रैक्टेड एंगल और दूसरा जो ये डाउनवर्ड मूव करेगा वहां के लिए इमर्जेंट एंगल. तो sin I by sin R1 and mu is equal to sin E by sin R2. अगर ये सारे के सारे एंगल स्मॉल है तो sin I को हम, ये मैथमेटिकल टर्म है, sin if angles are quite small then we can replace sin I with I, sin R with R. So mu is equal to I by R1 and mu is E by R2. तो जो हमारे पास फॉर्मूला था I plus E is equal to, उसमें हमने वैल्यू डाल दी. तो वैल्यू डालने के बाद I plus E is equal to mu R1 plus R2 and R1 plus R2 is equal to angle A, angle of prism. So A plus delta is equal to mu A and delta is equal to A into mu minus 1. अब ये छोटी सी टर्म है आपके पास, डेल्टा is equal to A into nu minus 1. लेकिन जब आप अपनी फिजिक्स की नोटबुक या पिछले इयर्स के क्वेश्चंस निकालोगे तो प्रिज्म रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसी इक्वेशन से रिलेटेड है. क्यों? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इस टर्म को छोड़ देते. तो आपने ये टर्म छोड़नी नहीं है. दिस इज फॉर द
मिनिमम डेविएशन मीन्स जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ज्यादा स्मॉल है उसके लिए। तो इसे अंडरलाइन करिए, बॉक्स में डालिए, या इसके ऊपर स्टार बनाओ, जहाज बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए इक्वेशन। तो a plus delta means a plus angle of deviation is equal to mu a and delta is equal to a into nu minus 1। अभी हम ये हमारा इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पेंडिंग है, वो कल हो जाएगा कंप्लीट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद हमारे पास सैचुरेटिव वर्किंग है। तो जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप देखना उसमें कहीं ना कहीं ये छोटी सी इक्वेशन यूज होगी। तो आपने इसको छोड़ना नहीं है कि ये आ नहीं सकता, ये पूछ नहीं सकते, एक नंबर में पूछेंगे या दो में पूछेंगे, आपने इसे याद रखना है, टाइम कर लो इसे कि ये आनी चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए। प्लीज नोट इट डाउन। You have a minute. The next one is dispersion of white light। ये ग्रेड 10 का बड़ा सिंपल सा टॉपिक, डिस्पर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन, it is a splitting of white light into 7 constituent colors। रेनबो फॉर्मेशन आपने पढ़ा है, बबल के कलर आप पढ़ेंगे इसमें, ये सारे का सारा वही है। So dispersion of white light means splitting of white light into its constituent colors: vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red। So here is a prism, screen, photographic plate जिसके ऊपर हम impression लेंगे इसका, white light at the splitting। Please see, first light incident, then get refract, then it disperse and get refracted with your violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red। तो इसे आप नोट कर लीजिए, जिस एंगल पे रेड लाइट डिस्पर्स करेगी और जिसके ऊपर दूसरी। प्लीज नोट इट डाउन। सर वो पिछली हाँ जी, वो स्क्रीन चेंज हो गई थी ना, तो नोट नहीं किया हाँ मैं था। देख रहा, मुझे था कि आज प्रिज्म का इतना ही करना, तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो कल करेंगे। सार्थक, जितना किया वो क्लियर है आपको? यस सर, इट्स क्लियर। कल हम स्टार्ट करेंगे विद माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। नोट करिए। सर हम वो भी पढ़ेंगे क्या जो सबमरीन में होता है?
बोलना दोबारा, क्या बोल रहे हो? सर हम वो भी पढ़ेंगे क्या जो सबमरीन में होता है, जिसमें लाइट दो जगह रिफ्रैक्ट होती है, एक बार नीचे एक बार ऊपर, दो है ना, मिरर्स। वो एप्लीकेशन है मल्टीपल रिफ्रैक्शन की, कलाइडियोस्कोप की बात कर रहे हो ना? यस सर, यस सर। वो तो ग्रेड 8 में है, उसकी बुक में आप देख लो। अगर डिटेलिंग में करना है तो हम कर लेंगे आफ्टर वेकेशन, लेकिन आफ्टर वेकेशन मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाने हैं। तो बुक मैंने आपको रेफर की थी, अरेंज कर लेना एज सुन एज पॉसिबल। नोट कर लिया ये सारा गुरनीत, गुरलेन? Yes, sir. ये एक दो Yes, sir. इक्वेशंस, हाँ जी, एक दो इक्वेशंस और हैं, वो भी आप बेटा नोट कर लो। इनके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन दे यूजुअली आस्क कि व्हाई रेड इज लीस्ट डेविएटेड, वायलेट इज मोस्ट। तो ये सारे का सारा आप इसी के बेसिस के ऊपर दे सकते हो। अब जो ये कोचेज इक्वेशन है, ये अगर आप ग्रेजुएशन करोगे सिंपल बीएससी, तो उसमें सेकंड ईयर में आपको आती है ये इक्वेशन मैथमेटिक्स पे। तो अभी के लिए आप इसे एज इट इज याद कर लो, अदरवाइज इसकी डेरिवेशन बहुत लंबी है और आपके सिलेबस में भी नहीं है। जस्ट नोट इट डाउन। सार्थक, मार्क्स मिल गए तुझे? सर फिजिक्स के नहीं थे। 20 है यार, बताया तो। वो मेरे को मिस्टेक्स देखनी थी ना, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। हाँ, वो मिस्टेक्स देखनी थी ना किस किस में भी क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, वो डिस्कस कर लेंगे किसी दिन फ्री टाइम, और तुझे मैं सॉल्व भी करके बता दूंगा कैसे। यस सर। चले, सो बाकी कल करते हैं विद एक डिस्पर्सिव पावर टॉपिक है छोटा सा, हमारा 2-3 मिनट का टॉपिक है, और उसके बाद फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देन आफ्टर कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसके सारी के सारी डेरिवेशंस वगैरह जो कुछ है, देन एस्ट्रोनॉमिकल, और आफ्टर एस्ट्रोनॉमिकल वी विल हैव रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। बस, होपफुली कल ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है जी, थैंक यू फॉर टुडे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज डिस्कस करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.